اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دو اہم بات سماعت کر لیجئے۔ تاکید کا معنی ہوتا ہے زور پیدا کرنا۔ تاکید کا معنی زور پیدا کرنا، جیسے ہم کسی بچے کو بھیجتے ہیں مدرسہ پڑھنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو مدرسہ میں پڑھنا، پھر تاکید ہم کیا کہتے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے؟ محنت سے پڑھنا۔ مدرسہ جا رہے ہو، محنت کر کے پڑھنا، اور پڑھنا تم، یعنی تاکید کے ساتھ۔ تو جس چیز میں زور پیدا کیا جائے اسے تاکید کہا جاتا ہے۔ اب تاکید پیدا کرنے کے لیے دو صورت ہے، یا تو آپ لام کے ذریعے تاکید پیدا کریں، یعنی کسی کلمہ پر، فعل مضارع پر لام داخل کر دے، لام داخل کر کے تاکید کا معنی پیدا کریں گے، یا یہ کہ فعل مضارع کے آخر میں نون لگا دیجیے، نون، اس سے بھی تاکید کا فائدہ دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں پہ لام لائیے گا شروع میں تو آخر میں نون لانا ہی پڑے گا تاکید کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ نون دو طرح کا آئے گا۔ ایک نون وہ آئے گا جس پر تشدید رہے گا، اور ایک وہ نون جس پر جزم رہے گا۔ آپ لوگوں نے نورانی قاعدہ میں پڑھا ہوگا، ایک ہوتا ہے نون مخفف اور ایک ہوتا ہے نون مشدد۔ نون مخفف اس کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو، اور نون مشدد اس نون کو کہتے ہیں جس پر تشدید ہو۔ تو تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا لاتے ہیں؟ شروع میں لام لاتے ہیں اور آخر میں نون لاتے ہیں۔ نون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نون مخفف اور دوسرا نون مشدد۔ نون مخفف اس نون کو کہیں گے جس پر جزم رہے گا، اور نون مشدد اس نون کو کہیں گے جس پر تشدید آئے گا۔ تاکید کا بھی معنی سمجھ رہے ہیں کہ تاکید کہتے ہیں کسی چیز کے اندر زور پیدا کرنا ہو تو وہاں پہ تاکید لایا جاتا ہے۔ اور تاکید کیسے لایا جائے گا؟ لام کے ذریعے اور نون کے ذریعے، لام کے ذریعے اور نون کے ذریعے، اس کے ذریعے تاکید لائی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی یعنی کسی کلام کے اندر زور پیدا کرنا ہو، کسی کلام کے اندر ہمیں مضبوطی پیدا کرنا ہو تو وہاں پہ تاکید کو لاتے ہیں۔ اور تاکید جو لایا جائے گا دو طریقے سے لائے گا۔ تاکید لانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ شروع میں لام داخل کر دیجیے اور آخر میں نون داخل کر دیجیے۔ اب نون جو رہے گا، نون دو طرح کا رہے گا، ایک نون مخفف، ایک نون مشدد۔ اب اتنی بات ذہن میں آ گئی ہے تو اب سبق نمبر 12 آپ لوگ سماعت کیجیے۔ لام تاکید بانون تاکید۔ لام تاکید کا معنی ہوتا ہے کہ لام کے ذریعے تاکید، بانون تاکید یعنی نون کے ساتھ تاکید، یعنی لام بھی آئے گا اور نون بھی آئے گا۔ لام تاکید کس کے ساتھ آئے گا؟ نون تاکید کے ساتھ۔ با معنی ساتھ ہوتا ہے، فارسی میں آپ لوگ پڑھے ہیں نا؟ جی وہ لام تاکید بانون تاکید، لام تاکید جو ہوگا نون تاکید کے ساتھ ہوگا۔ لام تاکید کس کے ساتھ ہوگا؟ نون تاکید کے ساتھ ہوگا۔ اب غور کیجیے آپ کہ جس کلمہ کے شروع میں لام لائیں گے وہ لام تاکید ہے، اور آخر میں نون لائیں گے وہ نون تاکید ہے۔ یہ دونوں ایک ہی ساتھ آئے گا۔ لام تاکید جہاں پہ آئے گا تو وہ نون تاکید بھی، اور نون تاکید جہاں پہ آئے گا وہ لام تاکید رہے گا ہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تاکید کا معنی ہوتا ہے زور پیدا کرنا۔ کسی کلام کے اندر، کسی جملہ کے اندر ہمیں زور پیدا کرنا ہو تو وہاں پہ تاکید لاتے ہیں۔ تاکید لانے کے لیے ہمیں لام کا استعمال کرنا ہوگا، نون کا استعمال کرنا ہوگا۔ کلمہ کے شروع میں یعنی پہلے میں، شروع میں اگر لام ہم لاتے ہیں تو آخر میں نون لانا ہوگا، اور نون دو طرح کا لائیں گے، ایک نون مشدد ہوگا، ایک نون مخفف ہوگا۔ نون مشدد اس کو کہیں گے جس پر تشدید ہو، اور نون مخفف اسے کہیں گے جس پر جزم ہو۔ تو یہ کہہ رہے لام تاکید بانون تاکید، یعنی لام تاکید کس کے ساتھ ہوگا؟ نون تاکید کے ساتھ۔
कह रहे हैं फेले मुजारा मारूफ या मजहूल। फेले मुजारा मारूफ या मजहूल के शुरू में लाम ताकिद और आखिर में नून ताकिद लगा दे तो लाम ताकिद बानून ताकिद मारूफ या मजहूल हो जाएगा। यानी अगर हमें फेले मुजारा के अंदर ताकीद का माना पैदा करना हो, जैसे यफ़अलु का माने क्या होता है? यफ़अलु फेले मुजारा है, यफ़अलु माने वह करता है या करेगा, और युफ़अलु का माना होता है वह किया जाता है या किया जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर ताकीद पैदा करना मकसूद हो तो शुरू में लाम लाएंगे और आखिर में नून लाएंगे। शुरू में लाम लाएंगे और आखिर में नून लाएंगे। और नून दो तरह का आएगा, एक नून मुखफ़फ़, एक नून मुशद्दद। एक वक्त में एक ही ला सकते हैं, या तो नून मुशद्दद लाइए या नून मुखफ़फ़ लाइए। जैसे यफ़अलु है ना, तो यफ़अलु के शुरू में लाम लाइए और आखिर में नून लाइए तो क्या होगा? और नून मुशद्दद लाइए तो क्या होगा? लयफ़अलन्ना, लयफ़अलन्ना माना क्या हो जाएगा? वह जरूर करेगा, वह जरूर करेगा। तो बात समझ में ये आई कि अगर फेले मुजारा के अंदर अगर हमें ताकीद का माना पैदा करना हो, खा फेले मुजारा मारूफ या मजहूल, इससे बहस हमको नहीं है। फेले मुजारा खा मारूफ हो या मजहूल, अगर उसके अंदर हमें ताकीद का माना जोर और पुख्तगी अगर पैदा करना हो तो शुरू में लाम लाएंगे, उसी को लाम ताकीद कहा जाता है, और आखिर में नून लाएंगे, उसी को नून ताकीद कहते हैं। जब लाम ताकीद और नून ताकीद आ जाएगा तो वो फेले मुजारा जो है लाम ताकीद बानून ताकीद बन जाएगा, यानी लाम ताकीद नून ताकीद के साथ हो जाएगा। बा माने साथ, तो लाम ताकीद किसके साथ हो जाएगा? नून ताकीद के साथ। अगर मारूफ में लगाएंगे तो लाम ताकीद बानून ताकीद मारूफ बनेगा, अगर मजहूल में लगाएंगे तो लाम ताकीद बानून ताकीद मजहूल बनेगा। ठीक है? तो फेले मुजारा में अगर हम लाम ताकीद और आखिर में नून ताकीद लगाते हैं तो लाम ताकीद बानून ताकीद मारूफ या मजहूल हो जाएगा। मारूफ में लगाएंगे तो मारूफ होगा, मजहूल में लगाएंगे तो मजहूल होगा। बात बिल्कुल समझ में आ रही है ना? जी। अब आगे कहते हैं कि लाम ताकीद, आप लोग घबराए नहीं, ताकीद जो है पहले समझा दिए हैं। लाम के जरिए ताकीद, इसीलिए लाम ताकीद। नून के जरिए अगर ताकीद है तो नून ताकीद। लाम ताकीद हमेशा मफ्तू होता है। लाम ताकीद क्या होता है? हमेशा मफ्तू होता है। मफ्तू का मतलब समझे, उस पर हमेशा जबर रहेगा। जी। फत्ता जबर को कहते हैं, जिस हर्फ पर जबर हो वह हर्फ क्या कहलाएगा? मफ्तू कहलाएगा। मफ्तू कहलाएगा। तो लाम ताकीद हमेशा क्या कहलाएगा? क्या रहेगा? मफ्तू होता है लाम ताकीद। और नून ताकीद की दो किस्में हैं। लाम को तो समझ गए कि उस पर जबर रहेगा, और नून ताकीद की दो किस्में हैं। एक है नून सकीला, नून सकीला, सकील माने होता भारी। नून सकीला का मतलब हुआ वो नून जिस पर तशदीद हो, यानी भारी हो जाता है ना वो। तो एक नून है नून सकीला और दूसरा है नून खफीफा। नून खफीफा, नून सकीला का मतलब हुआ जिस पर तशदीद हो, और नून खफीफा का मतलब हुआ जिस नून पर जज़म हो। जैसे लियफ़अलन्ना, लन्ना, लन्ना, तो नून पर तशदीद है तो ये नून सकीला है, नून सकीला है। और लियफ़अलन, ला यफ़अलन, लाम नून जबर लन, तो नून पर जज़म है तो ये नून खफीफा हो जाएगा। जी। अब दोनों की तारीफ नीचे कर रहे हैं। नून सकीला किसे कहेंगे? कह रहे हैं नून सकीला नून मुशद्दद को कहते हैं, यानी तशदीद वाले नून को नून सकीला कहा जाता है। तशदीद वाले नून को नून सकीला कहते हैं, और वो फेले मुजारा के तमाम सैगों के साथ आता है। नून सकीला जो है ना, यानी जिस नून पर तशदीद हो, फेले मुजारा के हर सैगे के साथ आएगा। 14 सैगे है ना, 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के, 3 मुज़क्कर हाजिर के, 3 मुअन्नस हाजिर के, 1 वाहिद मुतकल्लिम के, 1 जमा मुतकल्लिम के।
कुल 14 है। कह रहे हैं कि हर एक सैगा में नून सकीला यानी जिस नून पर तशदीद है वह नून हर एक सैगा में आएगा। अगर उससे पहले अलिफ हो तो वह मकसूर होता है वरना मफ्तू होता है। यानी देखेंगे कि फेले मुजारा के बाद 14 सैगों के साथ नून सकीला आ रहा है। अब नून से पहले अगर अलिफ होगा, अगर नून से पहले क्या हो जाए अलिफ हो जाए तो नून के आखिर में नून मुशद्दद के आखिर में जेर दीजिएगा। नून मुशद्दद पे क्या दीजिएगा जेर। और अगर उससे पहले अलिफ ना आवे तो जबर दीजिएगा। जैसे लयफ़अलन्ना लयफ़अलन्ना तो नून देखिए नून मुशद्दद है, नून से पहले अलिफ नहीं ना है लाम है ना। जी जी इसीलिए नून पर क्या है जबर है। जी दूसरा है लयफ़अलान्ने तो यहाँ पे नून मुशद्दद जो है नून से पहले क्या है अलिफ है। अलिफ है। इसी वजह से नून मुशद्दद तशदीद वाले नून के नीचे क्या है जेर कर दिए जेर है। यानी समझ गई है कि नून सकीला जो होता है नून मुशद्दद यानी तशदीद वाले नून को कहते हैं और ये फेले मुजारा के तमाम सैगों के साथ आता है। अब बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर उससे पहले नून से पहले अगर अलिफ हो तो नून मकसूर होता है यानी जेर, वरना अगर अलिफ ना हो उससे पहले तो मफ्तू होता है। जैसे लियफ़अलन्ना लियफ़अलान्ने। समझ गए जी आगे है नून खफीफा। नून की दो किस्म पढ़े हैं ना, नून सकीला नून खफीफा। नून सकीला समझ गए, अब नून खफीफा समझ। नून खफीफा नून साकिन को कहते हैं। नून खफीफा नून साकिन को कहते हैं। समझ आए, जिस नून पर जज़म हो वह सकीला खफीफा कहलाता है। और ये फेले मुजारा के सिर्फ 8 सैगों के साथ आता है। कितने सैगों के साथ 8 सिगों के साथ। अब यही जहन में आपको रखना है कि एक है नून सकीला एक है नून खफीफा। नून सकीला जो है फेले मुजारा के 14 सैगों के साथ आएगा पूरे सैगा के साथ। और नून खफीफा जो है ये कमजोर है, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये संभाल सके मैदान पूरा पार कर सके। लिहाजा 8 गो मैदान पार करके दम तोड़ देगा यानी सिर्फ 8 सैगों के साथ आएगा, 4 आने और से 6 सैगों के साथ नहीं आएगा। अब कौन कौन सैगों के साथ आएगा नीचे बात आ रही है, ठीक है। सही कलाम ये निकला कि अगर किसी कलमा के अंदर फेले मुजारा हो, फेले मुजारा मारूफ या मजूल, अगर उसके अंदर हमें ताकीद पैदा करना हो तो लाम के जरिए ताकीद पैदा करेंगे और नून के जरिए ताकीद पैदा करेंगे। इसीलिए लाम ताकीद और नून ताकीद कहते हैं। लाम शुरू में लाएंगे और नून आखिर में लाएंगे। लाम जो रहेगा हमेशा मफ्तू रहेगा, जबर रहेगा। और नून दो तरह का होगा, एक है नून सकीला एक है नून खफीफा। नून सकीला का मतलब होता है जिस नून पर तशदीद हो नून सकीला कहलाता है और ये फेले मुजारा के पूरे सैगों के साथ आता है। लेकिन याद रहे कि नून सकीला से पहले अगर अलिफ हो तो नून सकीला के नीचे जेर होगा, अगर अलिफ पहले ना हो तो जबर होगा। और एक है नून खफीफा। नून खफीफा नून साकिन को कहते हैं जिस पर जज़म हो और ये फेले मुजारा के सिर्फ 8 सैगों के साथ आता है। कितने सैगों के साथ 8 सैगों के साथ। तो ये 3-4 बात आप लोग याद कर ले, ध्यान में रख ले और बकिया बात जो कवायद है इंशाल्लाह कल समझेंगे, ठीक है। कल आप लोगों को ये करना है माजी मारूफ की गर्दान याद सुनाइएगा आप और माजी मजहूल की गर्दान सुनाइएगा। मुजारे मारूफ की गर्दान सुनाइएगा और मुजारे मजहूल की गर्दान सुनाइएगा, ठीक है। सारे लोगों को 4 गर्दान किसी भी हाल में याद कर लेना है, इसलिए कि सब कुछ पढ़ा दिए, सबको याद भी होगा। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं हो याद कर लेंगे। 4 गर्दान कंपलसरी तौर पे कल सुनाना है सबको।